Good morning, students. Today we are going to see our next chapter, that is the Bremen Town Musicians. The Bremen Town Musicians means this is a town named as Bremen, and in that town there were some musicians. So who were there, what were doing, and what is the story all about, and what it revolves around, we are going to see in this video. So we will start the story. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not much work, so his master began to treat him unkindly. Okay, now what happens? Once there was a donkey had who had worked long hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work. So what happened? As you can see in this picture, there is a donkey. So what is the story? It's about a donkey, or more characters are there. But first of all, we will see a donkey. What happened to him? The donkey was working for his master for so long एंड ही हैज़ ग्रोन वीक. वो बहुत थक चुका था अभी काम कर करके, उसकी एज हो गई थी, तो वो अब उतना काम नहीं कर पा रहा था. तो उसके मास्टर ने क्या किया था? सो what did does his master does with him? So we will see. So his master began to treat him unkindly. मीन्स अब वो उसके कुछ काम का नहीं रहा, तो उससे वो अच्छी तरह से जैसे वो पहले पहले उसे ट्रीट करता था वैसे ट्रीट नहीं कर रहा. कौन? मास्टर. Donkey's master is not treating him well. He is treating him unkindly. He even began to starve the donkey. Starve the donkey means वो उसे खाने तक नहीं देता था, खाने के लिए तक नहीं देता था. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. He wanted to save the money. अब मैं डोंकी के खाने के लिए क्यों मनी वेस्ट करूँ, ऐसा वो सोचता था. Because he's of no use now. डोंकी अब मेरे कोई काम का नहीं रहा. In the end, the poor donkey left the house. अब लास्ट में क्या हुआ? डोंकी ने उसका घर ही छोड़ दिया. अब उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है. ही इज ट्रीटिंग हिम अनकाइंडली. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ living in that house? So he left the house. He believed he still had a good strong singing voice. Means he can't do the work now, but he is having his a strong voice. He decided to गो टू ब्रीमेन टाउन. उसने डिसाइड किया कि मैं ब्रीमेन टाउन जाऊंगा एंड अर्न हिज लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियन, और आगे की जिंदगी एज अ म्यूजिशियन गुजारूंगा. सो व्हाट हैपेंड? ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग. ओके, मीन्स ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग. ही टू हैड बीन किक्ड आउट of the house by cruel master. Okay, what happened? जैसे एक डोंकी की स्टोरी थी कि डोंकी को उसके मालिक ने इनडायरेक्टली घर से निकाल दिया था, तो वैसे ही उसको रास्ते में एक डॉग मिला, एन ओल्ड डॉग. उसे भी उसके मास्टर ने घर से निकाल दिया था. द डॉग वॉज अफ्रेड. ही how will I earn my bread? He said. So dog said to donkey that मैं डर चुका हूँ. How will I earn my bread? मैं खाने के लिए कैसे अपने आप को मतलब सरवाइव कैसे करूँगा? How will I earn my bread? मैं कैसे खाने के लिए अपनी चीज़ें कमाऊँगा अपने लिए? So why you have a voice as good as mine? Sir said donkey. Means donkey said to the doggy, why? You have as good as you have a voice as good as mine. मेरी जितनी अच्छी आवाज है तुम्हारे पास भी. Let us both go to Bremen and sing for the town peoples. Now what happened? डोंकी ने सेम आइडिया सजेस्ट किया जो वो खुद कर रहा था. सेड दैट लेट्स गो टू ब्रिमेन टाउन. हम दोनों ब्रिमेन टाउन जाते हैं एंड सिंग फॉर द टाउन्स पीपल. हम टाउन पीपल के लिए सिंग करते हैं. वी शैल बी वेल पेड देयर. और हमें वहाँ पे अच्छे पैसे मिलेंगे. सो द टू कंपेनियंस वेंट ऑन टुगेदर. और दोनों जो कंपेनियंस थे, दोनों कंपेनियंस मीन्स हियर means who are thinking about something, or who were going to try something new. In this scenario they are going to try singing. Okay, suddenly they heard a cat meowing sadly with tears in his voice. Why are you crying? They asked. Now next suddenly they what happened? They heard a voice of crying cat. Means what cat does? Cat
does meow meow meow, and in that voice the cat was crying. So they ask, what happened? Why are you crying? To the cat. Now what happened? How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? अब मैं कैसे खुश रह सकती हूँ कि मुझे पता चलेगा कि मेरी मिस्ट्रेस जो होगी वो मुझे बाहर फेंक देने वाली है घर से. सो इसलिए मैं सैड हूँ. आई एम ओल्ड, वुड ओनली लाइक टू सिट बाय द फायर एंड स्लीप. और मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ ना, तो मुझे अभी बस फायर के पास सोना, मैं आग के पास सोना एंड आग के पास बैठे रहना और सोना पसंद है बस. एंड बिकॉज आई एम टू ओल्ड आई कैन नॉट कैच माइस एज आई डिड बिफोर. और मैं पहले की तरह चूहे नहीं पकड़ सकती. वॉट कैट डूज? दे कैचेस द माइस. सो आई कांट डू दैट because I am pretty old now. So my mistress does not need me anymore. So my mistress does not need me anymore, said the cat. Where I where am I to go? Where am I to go? मैं कहाँ जाऊँ अब? Come with us to Bremen, said donkey. Okay, as sweet, you have a sweet voice and you know night music. You you too can be a town musician, said the donkey. Donkey said you can also. Donkey again suggests the cat the same he has suggested to the dog, that you can come with us to the Bremen town and you have a sweet voice and you know the night music. Cat was crying in the night. So the donkey said that you know the night music, so you can also come with us and you can also be a Bremen town musician like us. Now the three traveled together for some time till they came upon a farmyard. Okay, अब वो travel कर रहे थे. Bremen town was about to come and वो ट्रैवल करते करते एक फार्म यार्ड के पास पहुंचे. मीन्स इट वॉज लाइक फार्म हाउस एंड इट वॉज हैविंग ऑल्सो अ यार्ड. मीन्स देर वॉज अ प्लेस और देर वॉज अ kind of ground and a house that is known as farmyard. So there they heard a cock's loud wailing. Sorry, there there they heard a cock's loud wailing. Means एक मुर्गा था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था. When they made inquiries, the cock told them. अब इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था वो मुर्गा. So उन्होंने पूछा कि what happened then, why are you wailing like, मतलब जोर जोर से रो क्यों रहे हो, जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? My mistress is preparing, said the cock. Okay, when preparing for what? Everyone was thinking. So mistress was preparing a feast for her guests. Okay, the mistress was preparing a feast for a guest, means party. खाने की दावत we can say. खाने की दावत, वो मुर्गे की जो मालकिन थे वो खाने की दावत के लिए प्रिपेयर कर रही थी. ओके, सो व्हाट हैपेंड? वो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? Everyone was thinking. She has told the cock, she has told the cook to kill me for the feast. Now this is something else. So what happened? जो मुर्गे की जो मिस्ट्रेस थी, जो मालकिन थी, उन्होंने उसके कुक से कहा था कि मेरे गेस्ट आने वाले हैं और हमें एक दावत, मतलब हमें खाना तैयार करना है, एक डिनर तैयार करना है, और उसके लिए तुम ये मुर्गे को, मीन्स जो कॉक है, यू हैव टू किल एंड यू हैव टू मेक फूड और मेक समथिंग लाइक चिकन बिरयानी और तंदूरी आउट ऑफ द कॉक. ऐसा मिस्ट्रेस ने कहा था कि किल द कॉक मीन्स मुर्गे को मार के मुर्गे से कुछ तैयार करो, चिकन बिरयानी और समथिंग एल्स. सो दिस वॉज द थिंग. द कॉक वॉज क्राइंग ऑफ वेलिंग लाउडली. ओके, सो शी हैज टोल्ड द कुक टू किल मी फॉर द फीस्ट, सेड द कॉक. आई एम सो फ्रिटन्ड, मैं बहुत डर गया हूँ. सो द डोंकी इन्वाइटेड द कॉक टू ज्वाइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. अब यहाँ पे क्या होता है? द डोंकी अगेन सजेस्टेड that you should also come with us and you can also be the musician with us. We are going to Bremen town. Bremen was still a long way. Now who are the who were the musicians here who were going to Bremen town? The donkey, the dog, the cat, and a cock. So these are the musicians and they all were going to Bremen town.
Bremen was still a long way away. There was a long way away to come Bremen town. On the way, they had to cross a forest. As it began to get dark. अब देखिए, अब ऑन द वे क्या हुआ, एक फॉरेस्ट उनको क्रॉस करना पड़ा. ओके, बट और ऑलरेडी रात होने वाली थी. द कॉक फ्लेव टू द टॉप ऑफ अ ट्री टू लुक अराउंड फॉर शेल्टर. अब रात होने वाली थी तो उन्होंने कॉक ने क्या किया, वो एक ट्री पे चढ़ गया एंड कहीं ऐसे रुकने वाली जगह, शेल्टर टाइप्स, वो ढूंढने लग गया. ओके, ही सॉ एन ओल्ड हाउस अमॉन्ग द ट्रीज. और उसने पेड़ों के बीच में एक ओल्ड हाउस, एक पुराना सा घर देखा. नाउ व्हाट हैपेंड, द फोर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर नाइट. अब जो चारों फ्रेंड्स थे, मीन्स द डॉग, द डोंकी, द कैट एंड द कॉक, दे डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर देयर नाइट. वो वहां पे ठहरने की, आराम करने की, दसों लोग, उन चारों ने डिसाइड किया कि आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे इन द ओल्ड हाउस दैट इज लुकिंग फ्रॉम द trees. Okay, so it was quite dark by the time they reached the house. Though through the window, they saw some robbers feasting at a large table inside. Now what happened? अब वो घर के अंदर जाने ही वाले थे और अंधेरा हो गया था उस घर के पास पहुंचते पहुंचते. सो व्हाट हैपेंड, उन्होंने खिड़की में से देखा. सो रॉबर्स थे वहाँ पे कौन थे, चोर थे. और वो लोग एक टेबल पे खा रहे थे कुछ तो भी, फीस्टिंग, वो दावत मतलब कर रहे थे. सब घर की चीजें, घर का मालिक वहाँ पे था नहीं तो वो सारी घर की चीजें चोरी करके और वहाँ पे बैठ के आराम से खा रहे थे उस टेबल पे. द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया. व्हाई नॉट गिव देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस हियर. अब एनिमल्स ने डिसाइड किया, वी आर द म्यूजिशियंस, so why not give our first performance here only, in front of the robbers. Robbers will be our first audience. So they decided कि हम हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे ही देते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द नाइट इज देयर एंड वन हाउस इज देयर एंड the all four musicians, means here you can see donkey, dog, cat and a cock, they are giving their first performance there. The robbers would be so pleased that they would happily share their food with four musicians. They were thinking that कि रॉबर्स इतना खुश हो जाएंगे, जो चोर इतना खुश हो जाएंगे हमारी म्यूजिक सुन के कि वो अपना जो फूड है, जो वो लोग खा रहे हैं, जो दावत कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे. They are thinking about something else. So they might even pay them for their performance. Okay. मतलब अब रॉबर्स, the animals were thinking that they might even pay for their performance. वो हमारी परफॉर्मेंस के लिए हमें पे भी करेंगे, हम इतना अच्छा गाएंगे. So the donkey placed his foreleg on the window ledge. The dog jumped on the donkey's back and the cat on the dog's. Now as you can see, donkey ने क्या किया, अपने जो फोर लेग्स थे, मीन्स फ्रंट के जो लेग्स थे, वो खिड़की के ऊपर अटका दिए. और फिर डॉग ने डॉगी के पीठ पे जंप किया. देन कैट ने डॉग की पीठ पे जंप किया. एज यू कैन सी, द फर्स्ट ऑफ ऑल डोंकी, देन डॉग, देन कैट. नाउ व्हाट हैपेंड, द कॉक पर्च ऑन द कैट्स हेड. अब डॉग ने क्या किया, कॉक ने कैट की हेड पे ऊपर जंप कर दिया, वन बाय वन अपॉन वन. ओके, सो they are standing along there, and what happened then all at once, all together, they began to sing their wonderful song, and they started their song. Strangely, the music only frightened the robbers. अब क्या हुआ, लोगों ने सोचा था कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रॉबर्स विल अप्रिशिएट अस, दे विल शेयर देयर फूड, दे विल इवन पे फॉर अ परफॉर्मेंस. सो स्ट्रेंजली यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई कि उन लोगों के चारों के म्यूजिक से रॉबर्स डर गए. दे गेट फ्रिटन, वो बहुत ज्यादा डर गए. दे ओनली हर्ड द टेरिबल नॉइस एंड सॉ अ ह्यूज शैडो कास्ट बाय द एनिमल्स टुगेदर. उन्होंने सिर्फ वो जो चारों की, डोंकी की आवाज वी कैन इमेजिन, एंड देन डॉग एंड कैट एंड कॉक ऑल टुगेदर, इन सबकी आवाज साथ में आई और वो चारों एक के ऊपर एक खड़े थे. तो रॉबर्स रॉबर्स ओनली ग्रेट फ्रिटन, कि चारों, उन लोगों ने सिर्फ शैडो देखी है,
उन चारों की एक के ऊपर एक खड़े रह के ह्यूज शैडो, जो डरावनी शैडो थी, एंड दो चारों की जो नॉइसली आवाज थी, चारों की एक साथ आवाज जो नॉइसली आ रही थी, वो सुन के वो डर गए. ओके. दे sprang from the table and taking to their heels disappeared into the forest. अब दोनों ने सब लोग जो वो ये थे, रॉबर्स थे, वो सारे डर गए. एंड वो सब उठे टेबल्स पे से. दे sprang from the table and disappeared into the forest. फॉरेस्ट में गायब हो गए, भाग गए वो लोग डर के. The four friends were puzzled, but they gladly sat down at the table and had a hearty dinner. अब वो लोग जो चारों फ्रेंड्स थे, वो लोग पजल, मतलब वो सब लोग सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, हम लोग ने तो इतना अच्छा गाया, फिर ये लोग भाग क्यों गए. बट दे ग्लैडली, फिर वो खुश हो गए और वो लोग टेबल पे बैठे और उन लोगों ने डिनर किया. देन दे पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू स्लीप. और फिर उन लोगों ने लाइट बंद की एंड देन वेंट टू स्लीप. द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ इन द यार्ड, कैट नियर द स्टोव. अब देखिए वो लोग इस पोजीशन में गाना गा रहे थे. द डोंकी, द डॉग, द कैट एंड द कॉक. एंड व्हाट हैपेंड, रॉबर्स इस तरह भाग रहे थे, एज यू कैन सी. सो व्हाट हैपेंड, रॉबर्स भाग गए एंड देन उन्होंने डिनर किया एंड दे स्विच ऑफ द लाइट एंड दे वेंट टू स्लीप. तो वो लोग कहाँ कहाँ सोए. द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ इन द यार्ड, वो डोंकी यार्ड में सो गया. द कैट नियर द स्टोव, कैट स्लेप्ट नियर द स्टोव. The dog on the doormat and the cock on the beam of the roof. As everyone were sleeping on in their houses. Okay, now the robbers had not gone very far. अब robbers इतनी दूर गए नहीं थे. Their leader saw the house became dark and quiet. अब robbers के जो leader थे, उन्होंने फिर से पलट के देखा और उनको वो जो घर था वो अब शांत दिखने लग गया. मीन्स एवरीवन हैज स्लेप्ट. वो सारे जो चार म्यूजिशियंस थे, मीन्स डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक, वो सब सो चुके थे और लाइट बंद कर सो चुके थे. तो उनको शांति दिख रही थी उस घर में. सो ही सेंट अ मैन टू सी इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस. एक जो रॉबर्स में से एक जन था, एक वन मैन, द रॉबर्स हेड, उसने क्या किया, भेजा कि घर सेफ है क्या अभी वापस जाने के लिए, ये देखने के लिए, टू चेक. ओके. द रॉबर्स हैड केप्ट ऑल देयर स्टोलन रिचेस इन दैट हाउस एंड वांटेड देम बैक. वो क्यों वापस जाना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों जितना भी उनका चोरी का सामान था, नॉट ओनली फ्रॉम दैट हाउस, फ्रॉम मेनी हाउसेस, दे हैव केप्ट देयर ओनली, उस घर में ही रखा हुआ था. so that they have to go back and take all the things, all the riches, and go back. The man went to into the house on tiptoe. He saw the cat's eye and thought they were burning coals. अब देखो, वो जो मैन था वो गया उस हाउस के अंदर देखने के लिए, टू सी इट इज वेदर इट इज सेफ और नॉट टू कम बैक. सो अंधेरे में उसने सिर्फ कैट की आंखें देखी. नाउ वी कैन इमेजिन द कैट्स आईज आर शाइनिंग लाइक मार्बल स्टोन्स इन द डार्क. सो वो उसको ऐसा लगा कि वो बर्निंग कोल्स है. ओके. ही ट्राइड टू पिक अप वन टू लाइट हिज कैंडल. ओके. उसने ट्राई किया कि वो अपनी मतलब कैंडल जला के देख सके. बट इट फ्रिटेंड द कैट. द एंग्री कैट फ्लू at him and scratch his face. अब देखो वो उसने क्या किया कि उसको लगा कि वो कोल है, बर्निंग कोल्स है. तो उसने क्या किया, वो कैट की आंखों को बर्निंग कोल समझ के, मीन्स कोयले का टुकड़ा समझ के उठाने की कोशिश किया कि वो अपनी कैंडल उससे जला सके. सो कैट की आंखों को वो छूने जाएगा या नोचने जाएगा तो कैट को गुस्सा आएगा ही. सो कैट बिकेम एंग्री एंड स्क्रैच हिज फेस. कैट को गुस्सा आया और कैट ने चोर का चेहरा स्क्रैच कर दिया, रॉबर का चेहरा. दिस फ्रिटेंड द रॉबर, और रॉबर भी डर गया. ही टर्न टू रन आउट ऑफ द हाउस. अब देखिए, अब रॉबर इससे बहुत डर गया एंड रॉबर फिर भागने लग गया. ओके. ही एज ही रैन द डॉग ऑन द डोरमैट बीट हिज लेग हार्ड.
अब वो जोर जोर से भागने लग गया और फिर डॉग जो डोरमैट पे सोया था उसने उसका लेग काट लिया. ओके, बीट कर लिया, काट लिया. ओके, ही स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द डॉगर. वो अनबैलेंस कर लिया अपने आप को और डोंकी के ऊपर गिर गया. द डोंकी वोकन अप एंड सडनली गिव द रॉबर अ स्मार्ट किक. अब डोंकीज क्या करते हैं, उनको गुस्सा आता है तो कैट स्क्रैच करती है, डॉग बाइट करते हैं. ओके, काटते हैं. एंड डोंकीज क्या करते हैं, किक करते हैं. तो डोंकी के ऊपर जब वो रॉबर गिरा तो डोंकी ने क्या किया, नथिंग एल्स, उसने किक दे दिया उसको, जोर से एक लात मार दी with his hind legs. And all this while the cock had been screaming, cock, cock a doodle doo, cock a doodle doo. अब मुर्गा जोर जोर से चिल्लाने लग गया, cock a doodle doo. In his ears flapping, in his sorry, in his ears and flapping his wings around his head, and robber nearly died of fright. अब ये सब कुछ हो रहा था कि कैट स्क्रैच कर रही है, डॉग बाइट कर रहा है, डोंकी किक कर रहा है और कॉक जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसके पूरे हेड के अराउंड वो नाच रहा था कि कॉक को डूडल डू, कॉक को डूडल डू, ऐसे कर करके जोर जोर से चिल्ला रहा था. somehow he got back to his gang in ट्रेम्बलिंग. और वो इतना डर से ऑलमोस्ट ही कुड डाई, मतलब वो डर से मरने वाला था, इतना जोर से वो डर गया था. और फिर वो जैसे तैसे अपने गैंग में पहुंचा. एंड ट्रिम्बलिंग वॉइस ही टोल्ड देम दैट द हाउस वॉज फुल ऑफ मॉन्स्टर्स एंड डेडली क्रीचर्स. यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स और डेडली क्रीचर्स है हु बाइट एंड स्क्रैच एंड किक एंड अटैक यू इन द डार्क. जो हमें बाइट करते हैं, क्रैक मतलब किक करते हैं, स्क्रैच करते हैं इन द डार्क. ओके, अंधेरे में. So the robbers never went back to the house. The four friends found enough money in the house to live on their. Okay. अब उन्होंने, चोरों ने जो पैसे छोड़े थे वहाँ पे, जो भी उनकी चोरी की हुई चीज़ें, तो वो चारों म्यूजिशियंस वहाँ पे रह रहे थे खुशी खुशी. और उतना इनफ मनी हो गया था उनके पास कि वो वहाँ पे आराम से रह सके बिना कुछ काम किए, इन द हैप्पीनेस एंड कंफर्ट. दैट इज वाई द म्यूजिशियंस नेवर वेंट टू ब्रेमेन. सो this was the story, the Bremen town musicians. And these are the Bremen town musicians who never went to the Bremen town. So this was the story, and I'm going to send a picture along this video, and you have to write the question answers in your notebook. So do complete your homework. Thank you.